Hello students, the next topic is of pest resistance. Pest resistant in plants. Pest resistance means we have to improve such plants that is pest resistance. For example, several nematodes. These are the members of platyhelminthes, nematodes. Several nematodes that affect the plants and human beings also. A nematode that is a nematode, single a nematode है that is of Melidogyne. Meloidygyne incognitia. It is a type of nematodes that infect the root of tobacco and reduce the production of tobacco. This Meloidygyne incognitia nematode infect the root of tobacco and reduce the production in tobacco, but the strategies adopted to prevent this infection, which is depend upon the RNAi. What is RNAi? The full form RNAi is of RNA interference. It is takes place in all eukaryotic organism as a cellular defense. RNA, what is the RNAi? This method involves silencing of messenger RNA. We know that messenger RNA produce the particular type of protein. So this nematode, that is Meloidygyne incognitia, produce the particular type of messenger RNA that produce protein, and this protein, if reduce the production of tobacco or harmful effect is given by these proteins. If any complementary messenger RNA is formed of this मैसेंजर आरएनए, अगर इस मैसेंजर आरएनए का एक और कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बना दिया जाए तो क्या होगा? ये जो मैसेंजर आरएनए है और दूसरा कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा तो ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, एंड दैट प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए टू फॉर्म डबल स्ट्रैंड आरएनए, and this process is known as RNA silencing. That is known as RNA silencing. सीधा सा इसमें क्या हो गया? RNA silencing का मतलब यहाँ नेमेटोड्स जो है अपना एक मैसेंजर आरएनए बना रहा है, और ये मैसेंजर आरएनए बना करके क्या बनाता है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ protein with the help of polypeptide chains. Suppose this messenger RNA contain its another complementary messenger RNA, इसका दूसरा complementary messenger RNA, तो ये दोनों आकर के जुड़ जाएंगे और एक क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंड RNA बन जाएगा। तो ये प्रोसेस यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने से, पॉलीपेप्टाइड चेन बनने से रुक जाएगी, और दिस प्रोसेस इज नोन एज मैसेंजर RNA. So through agrobacterium vector, this genes are introduced, or specific genes are introduced into the host plant. Host plant के अंदर nematode Meloidygyne incognitia का जो सेंस, जो उसका एंटी सेंस RNA इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेपिसेंस वेक्टर के थ्रू होस्ट के जीन में इंकॉर्पोरेटेड कर दिया जाए तो क्या होगा? सेंस एंड एंटीसेंस
मैसेंजर आरएनए दोनों बन जाएंगे, और दोनों बन जाएंगे तो डबल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बन जाएगा दैट स्टॉप द formation of protein, particular type of protein. This is known as RNA silencing or RNAi, due to which that parasite cannot survive in the transgenic host and therefore तो दोनों सेंस और एंटी सेंस बनने पर नेमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाता और प्लांट्स प्रोटेक्टेड हो जाता है. द नेक्स्ट यूजेज ऑफ these biotechnology, that is application in medicine. Application in medicine. Recombinant DNA technology process are immense impact in the healthcare and the production of different types of safe एंड इफेक्टिव ड्रग्स. डीएनए टेक्नोलॉजी से सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स बनाने में बहुत योगदान मिला है. लगभग प्रेजेंट टाइम में 30 रिकॉम्बिनेंट डीएनए ड्रग्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से 30 ड्रग्स इनसे में बन चुकी है. आउट ऑफ दीज 30, 12 ड्रग्स हैव बीन मार्केटेड इनसाइड द इंडिया. 12 ड्रग्स हैव बीन मार्केटेड इन द इंडिया. उनमें से एक एग्जांपल अगर अपन लें कौन कौन सी ड्रग्स बनती है डिफरेंट लेवल पे, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन भी नॉर्मली इंसुलिन कहाँ से मिलता है, दैट इज पिग और कैटल पेनक्रियास से. पिग और कैटल का पेनक्रियास से इंसुलिन ऑब्टेन किया जाता है. बट इफ वी टेक इंसुलिन ऑफ एनी अदर एनिमल्स that generates the different types of, that develop the different types of allergy and reactions that is responsible for the foreign protein. If we intake foreign proteins, our body antigen will be activated and destroy that antigen by the formation of antibody. क्योंकि हमारी बॉडी जो है फॉरेन प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, बहुत सारी रिएक्शंस डेवलप हो सकती है. अगर अपन बात करें इंसुलिन, दैट इंसुलिन कंसिस्ट 2 polypeptide chains, that is chain A and another is of chain B. These 2 chains linked with the disulfide bonds. Both 2 chains linked with the disulfide bonds, and this insulin which is prepared in that human beings is synthesis as a prohormone, or we can say proinsulin. यानी ह्यूमन बीइंग में जो इंसुलिन सिंथेसाइज्ड होता है वो कैसे होता है, एज ए प्रोइंसुलिन. और ये प्रोइंसुलिन प्रोसेस्ड होता है, और प्रोसेस्ड होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, इंसुलिन में कन्वर्ट होता है. यानी इमेच्योर्ड इंसुलिन होता है, दैट ऑल्सो कंटेन वन मोर पेप्टाइड चेन, दैट इज सी पेप्टाइड. एक और चेन होती है जिसको सी पेप्टाइड चेन कहते हैं, बट सी पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द मेच्योर्ड इंसुलिन. दिस इज प्रेजेंट इन द प्रो इंसुलिन बट नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर्ड इंसुलिन. तो may I draw one diagram here. This is one chain, we can say peptide A peptide, and this is the C peptide chains, and this one is of another chain, and these are both bind up with the disulfide bonds.
So this is proinsulin. This one is of proinsulin. This is the A peptide chain. This one is B peptide chain. And this one is of this middle portion. This middle portion, that is the C peptide chains. But when it is processed, both the chains will be eliminated, attached, and the C chain will be eliminated. So this is the A peptide chains, and this one is of another B peptide chains, which is linked with the disulfide bonds, and this one is of C peptide chains. So after processing, the C peptide chains will be eliminated, and A and B peptide chains remain inside the insulin. So this type of insulin formed by a company in 1983. 1983 के अंदर इली लिली एक कंपनी ने अमेरिकन कंपनी ने that prepared 2 DNA sequence A and B chain. उन दोनों ने A चेन और B चेन बना दी, और इन B चेन को ह्यूमन इंसुलिन के लाइक बना दिया, और प्लाज्मिड ई कोलाई के थ्रू इसको नई इंसुलिन प्रोड्यूस चेन कर ली, एंड दैट विल बी सेपरेटेड both the chains formed by the E. coli, then after separated and bind with the disulfide bonds to form the human insulin. तो आर्टिफिशियली ह्यूमन इंसुलिन भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बन चुका है. इसी तरह से अपन एक और एग्जांपल देखें, दैट इज ऑफ स्टेम सेल. स्टेम सेल, व्हाट इज द स्टेम सेल? स्टेम सेल पहले क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं. स्टेम सेल्स इज द अनडिफरेंशिएट सेल्स. दीज आर द undifferentiated cells, and that can be differentiated into specialized cells. That can be differentiated into specialized cells according to requirement of the body. They can divide it with the help of mitosis. दो अनडिफरेंशिएट सेल्स होती है और डिफरेंशिएट हो सकती है स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, और दीज स्टेम सेल्स obtain from two things. One is type of embryonic stem cell, another way of adult stem cells. स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट्स के इनर सेल मास से मिलती है, और एडल्ट स्टेम सेल्स जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट होती है आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये एडल्ट स्टेम सेल हो सकती है, और ये स्टेम सेल के अंदर एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है दैट कैन बी मॉडिफाइड और डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट. बॉडी के किसी भी पोर्शन में ये डिफरेंशिएट हो सकती है. इनके थ्रू किसी भी मैलिग्नेंट डिजीज और नॉन मैलिग्नेंट डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. मैलिग्नेंट बहुत सीवियर डिजीज हो या कैसी भी डिजीज हो, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है. यानी इफ दीज स्टेम सेल्स इंट्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर डैमेज पोर्शन, that will be differentiate and regenerate the different particular body portion. So it help in the tissue regeneration. It help in bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation, brain disease treatment, blood treatment,
तो बहुत सारी तरह की डिजीज है, उनके ट्रीटमेंट में इन स्टेम सेल को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये स्टेम सेल आजकल जो स्टेम सेल बैंक बनने लग गए हैं, जिनमें लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर लेते हैं, और इन फ्यूचर दैट विल बी क्योर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग में अलग अलग तरह की डिजीज को ये क्योर कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स nowadays it is rapidly developing techniques, and due to which we cure the many types of disease, अलग अलग तरह की डिजीज को क्योर किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखें अपन मेडिकल के अंदर, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स अलाउ द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्टिव जीन्स इन, यानी जीन थेरेपी के अंदर दैट करेक्शन ऑफ जेनेटिकली डिफेक्टिव जीन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर डिफेक्टिव जीन आ गया है, इंसर्ट हो गया है, तो उस डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करके एट एम्ब्रियोनिक लेवल पे उसको करेक्ट कर दिया, उसके जो करेक्शन, जो करप्टेड पोर्शन हुआ उसको करेक्ट करके वापस इंसर्ट कर दिया जाता है, तो वो डिजीज नहीं होती। बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिजीज होती है दैट इज ड्यू टू जीन्स, ड्यू टू मतलब रॉन्ग कोडिंग ऑफ या रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द पर्टिकुलर जीन्स। तो उस रॉन्ग सीक्वेंस को या करेक्टेड सीक्वेंस को करेक्शन करके सही कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। इसका एक एग्जांपल है क्लिनिकल जीन थेरेपी, जो 1990 के अंदर सबसे पहले की गई थी, एक 4 ईयर गर्ल चाइल्ड के लिए। उसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी थी, एडीए डेफिशिएंसी थी, दैट इज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। इस की वजह से क्या होता है, ये जो एमिनो एसिड्स है इसका सिंथेसिस नहीं हो पाता था, और इस डिफिशिएंसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है, या कर सकते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू इस प्रॉब्लम को क्योर की जा सकती है। परंतु अब एंजाइम रिप्लेसमेंट की जो थेरेपी है कंटिन्यूसली बार बार पूरी लाइफ टाइम में करनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो इस एंजाइम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है, अगर उसी जीन को करेक्ट कर दिया जाए, जो करप्टेड जीन है उसको करेक्ट कर दिया जाए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जीन इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो वो डिजीज जो है वो क्योर हो जाएगी। इसके साथ साथ इसी तरह से जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया के अंदर भी गलत सीक्वेंस हो जाता है, उस सीक्वेंस को करेक्ट किया जा सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, पार्किंसन डिजीज, ये सारी डिजीज के अंदर क्या होता है, रॉन्ग सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस पेयर का। इफ वी करेक्टेड दीज सीक्वेंस एंड अगेन री इंट्रोड्यूस इन द ह्यूमन बीइंग, दैट विल बी क्योर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। तो यहां पर करप्टेड जीन को करेक्ट करके वापस री इंसर्टेड किया जा सकता है। तो जीन थेरेपी के थ्रू बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व किए जा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मेनली आज अपन ने 3 प्रोसेस पढ़े हैं बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल में। वन इज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो कि पहले अब तक एनिमल से लिया जा रहा था, और वो अब आर्टिफिशियल उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, जिससे बहुत सारी डिजीज को क्योर किया जा सकता है। और जीन थेरेपी के अंदर जो करप्टेड जीन्स है उसको करेक्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसर्ट किया जा सकता है, और ऑर्गेनिज्म को इन डिजीज से फ्री कर सकते हैं। और ये एडीए डिजीज जो है सबसे पहले फाइंड आउट की थी, दैट इज एम ब्लेस और WF एंडरस्कोप। इन्होंने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ
जो है अमेरिका में, वहाँ पे इसको करप्टेड जीन को करेक्ट किया था।